Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay, all of you. So, tell me the name of the chapter that we have started. Reflection and Reflection and Rotational symmetry. Reflection and rotational symmetry we were doing, and we have completed the first exercise. I think. No, sir. Yes, sir. Sir, we have not started on. yes, sir. Yes, sir. Beta, we have completed. We have we have completed done. the first exercise. Yes, Sir, sir. we have Yesterday we completed did the it. first exact topic. क्या कह रहे हो बेटा सिद्धार्थ? Sir, we have completed the first exercise. Take the topic. फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिए हमने. My voice is clear. Yes, sir. Just a second. Start कर रहे हैं. Sir, can you do the question 11? Yes बेटा अभी बताता हूँ. Let me open the book. Sir, I am confused in two of the question 11. Okay, so you were asking me the 11th question of this chapter, this exercise, first exercise 11. I am asking, sir, sir, have doubt in two question of question 11. हाँ बताओ बेटा कौन से वाले? Sir, in the second and the fourth. Second and fourth part. An angle with equal arms has its bisector as the line of symmetry.
एक एंगल है इक्वल आर्म्स का, दैट मीन्स, एक सेकंड बेटा होल्ड करो। Which question? Yes, there is an angle with equal arms. This is question 11. We have already done this question. Hamad is asking me the second part of this question. He is having a doubt. बेटा देखिए, एक एंगल है जिसकी आर्म्स इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों जो आर्म्स हैं इनको आर्म्स बोलते हैं, ये दोनों इक्वल साइज के हैं। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर होगी, ये इस एंगल की, व्हाट वेयर इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज बाइसेक्टिंग द एंगल, एंगल को बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में काट देना। सो दिस लाइन, द एंगल बाइसेक्टर इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब आप जब एंगल को फोल्ड करेंगे इस लाइन के अबाउट, तो दोनों पार्ट्स जो हो जाएंगे वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, ओके। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, और यहाँ पर क्वेश्चन में भी ये लिखा है, सो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू, आंसर इज ट्रू, ठीक है। फोर्थ पार्ट, a rhombus has 4 lines of symmetry, rhombus की 4 lines of symmetry होती हैं, false, rhombus has only 2 lines of symmetry। देखिए ये rhombus है एक, this rhombus has only 2 lines of symmetry, कौन कौन सी, दोनों diagonal जो होती हैं, this is the first line of symmetry, the diagonal, and this is the second line of symmetry, ठीक है। So a rhombus has only 2 lines of symmetry, so the statement is false, इस वाले का आंसर है false। क्लियर है हमद? Okay, sir. Clear. All of you please start your videos, don't keep your video off। Sir, mine is open. ओके, रोटेशनल सिमेट्री आज से हमको स्टार्ट करना है, सो आई विल शो यू अ वीडियो ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, Okay, ओके। sir. Okay, I'm sharing my screen. See the video, everyone. Yeah. Can you see the screen? Yes. sir. Yes, sir. Sir, nothing is visible properly. Let's draw an isosceles triangle. The sound is coming. Yes, sir. Sir, it's a bit low. Low, sir. बेटा अभी तो मैंने पॉज कर दी है वीडियो, जब मैं प्ले करूंगा तब देखना। It's a triangle in which two of the sides are equal to each other. Sir, it is coming. Sound is coming. Let's draw an isosceles triangle. Sound is coming. Yes, Yes, sir. sir. It is coming. Yes, sir. Triangle in which two of the sides. Let's draw an isosceles triangle. It's a triangle in which two of the sides are equal to each other. And we had seen in the previous video that it has a vertical axis of symmetry. If this part is flipped to the other side, we see that the two parts match exactly. And that's why we say that this shape is symmetrical. This is called reflection symmetry. Why is it called that? Let's see. If we take one part and keep it against a mirror, we will get the original shape. The reflection of one part completes the shape. But wait, what is the other kind of symmetry? Do we have another kind?
To know the answer, here's another figure for you. This figure is made up of 6 squares to be precise. नाउ ये वीडियो में जो आपको पहले पार्ट में जो बताया दैट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एक बार फिर से आपको समझाई रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है। मिरर इमेज बन जाती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री में। अब रोटेशनल सिमेट्री आपको बताएंगे। बी वेरी अटेंटिव, समझने के लिए बहुत ध्यान से देखना। व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री? द एनिमेशन इन द वीडियो इज वेरी गुड। ठीक है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा with the help of the animation. Okay, see the video. Now I want you to tell me if this shape has reflection symmetry or not. Can we draw a line through it such that the two parts formed match exactly with each other? If we try out different lines, we realize that no such line can be drawn. This shape has no reflection symmetry, but what this shape has is rotational symmetry. Yes, rotational symmetry. What does that mean? As the name suggests, let's try rotating the figure about its center point. And what does rotating about a center point mean? Take the example of this triangle. If we rotate it about its center point, it will rotate like this. If we rotate it about this point, it will rotate like this. And if we rotate it about one of its vertices, it will rotate like this. The shape will rotate differently depending on the point around which it is rotated. Now let's come back to our figure. We rotate the figure completely around the center point once and see how many times it looks exactly like the original one. Rotating it completely means rotating it by 360 degrees. Let's have a counter on the right which counts the number of times the rotated figure looks like the original. Let's start. Now the figure rests at 0 degrees. After rotating it by 90 degrees, we get this shape. It's not the same as the original. The counter is still at 0. Okay, so let's rotate the original shape by 180 degrees. And we see that it looks exactly like the original shape. It fits in perfectly. We see an increment of 1 on the counter. We continue rotating it till we finish one complete rotation. Rotating it by 270 degrees gives us the shape which is not the same as the original. And rotating it by 360 degrees gives us the original shape back. The counter changes to 2. What does this 2 tell us? It tells us that when this figure is rotated completely by 360 degrees, the rotated image looks exactly like the original image twice. Once at 180 degrees and another at 360 degrees. So we say that this shape has rotational symmetry of order 2. To recap, when do we say that a shape has rotational symmetry? Okay, this is long, so I want you to listen to it carefully. A shape has rotational symmetry if it looks exactly like the original shape a number of times when rotated about the center point by 360 degrees. Here, the number of times it looks like the original is 2. So we say that this shape has rotational symmetry of order 2. Is it easy to find the order of rotational symmetry? Let me give you a few shapes, and why don't you try finding their order of rotational symmetry? First, an oval looks like this. Next, a square, an equilateral triangle, and a circle. Each of them has rotational symmetry, but we need to find the order. We begin with the oval shape and start rotating it. So, I hope you all have understood the basic of rotational symmetry. क्या होता है जब फिगर को हम सेंटर पॉइंट के अबाउट जब रोटेट कराते हैं तो फिगर जिस पोजीशन में ओरिजिनली रखा हुआ है फिगर उसी पोजीशन में दोबारा से आपको दिखने लगेगा। ओके, तो 360 डिग्री जब आप टोटल घूमेंगे तो जितनी बार भी ऐसा होगा कि फिगर अपने ओरिजिनल शेप जैसा दिखेगा, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ओवल का ऑर्डर बता रहे हैं, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना है ओवल का। ठीक है, जब तक ये 360 डिग्री इसको पूरा घुमाएंगे तो कितनी बार ऐसा होगा कि ये अपनी ओरिजिनल शेप की तरह दिखेगा। ओके, सो सी दिस।
Let's see how many times the rotated image looks like the original. Once, तो 180 डिग्री पर आपने देखा था the oval shape was looking like the original one, जैसे रखा हुआ था ओरिजिनल शेप पोजीशन में जैसे रखा था बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था 180 डिग्री एंगल जब हुआ था तब। नाउ 360 पे भी बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएगा। and twice. तो ऑर्डर ऑफ ओवल शेप रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या हो गया ओवल शेप का? द ऑर्डर इज 2। इज इट क्लियर? Yes, sir. The square. It looks like the original shape 2 times after the complete rotation. Its order of rotational symmetry is 2. In a similar way, why don't you try finding the order of rotational symmetry for these 3 shapes? स्क्वायर का बताओ बेटा ऑर्डर क्या होगा? सेम ही होगा सर वो। Sir, 4. स्क्वायर का ऑर्डर 4 होगा। देखो कैसे, सी द वीडियो। Let's start rotating the square now about its center point. 90 degrees, 90 डिग्री पे देखो सेम वैसे ही हो गया था। 90 डिग्री पे देखा आपने स्क्वायर की शेप सेम थी, पोजीशन सेम हो गई थी। सर बिकॉज सर 90 डिग्री वो सर 180 डिग्री हाफ इज 90। 180 degrees, 180 पे भी स्क्वायर अगेन इज लुकिंग लाइक द ओरिजिनल पोजीशन। 270 degrees, 270 डिग्रीज पे भी सेम पोजीशन हो गई and 360 degrees. एंड 360 डिग्री पे फोर्थ टाइम सेम पोजीशन हो गई। सो द ऑर्डर इज 4। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या हो गया? 4 हो गया। Clearly, the order of rotational symmetry for a square is 4. Now for the equilateral triangle. The triangle is 3. इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखिए 120 डिग्री होने के बाद शेप सेम हो रही है, पोजीशन सेम हो रही है। देखिए दोबारा से दिखा रहा हूँ। 4. Now for the equilateral triangle. 120 120 डिग्री पर degrees at 240 degrees 240 डिग्रीज पे भी and at 360. एंड देन 360 डिग्रीज। ठीक है, तो तीनों बार यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल की पोजीशन सेम हो गई थी। So circle has unlimited. 3 times in one complete rotation. Sir, circle has The order is unlimited. 3. And now we come to the circle. What do you think will be the answer here? No matter how we rotate the circle, it will always match the original shape. It will have rotational symmetry of order infinity. सर्कल का समझ में आया आपको? Why the order Yes, is sir. infinity? Circle is very rich. Yes, sir. Yes. So rotational symmetry of circle will be infinite. ठीक है, the order of rotational symmetry will be infinite. Can it be get Remember, 460 a degrees? shape has rotational symmetry if it looks exactly like the original shape a number of times when rotated about the center point by 360 degrees. Okay, everyone understood the basic concept of rotational symmetry? Yes, sir. Yes sir। Okay. So look at the figures which are given in your book. Okay, look at the letter H. Example 4 देखो बेटा। Example 4 में देखिए सारे बच्चे, पेज नंबर ओपन करो। Yes 218, पेज नंबर 218 ओपन करिए। Sir, open. इसमें फिगर देखिए जो एच शेप का बना हुआ है। कैन यू टेल मी द ऑर्डर इन दिस केस? रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होगा? द ऑर्डर विल बी 2।
सर इट विल बी 2. यस, एच को अगर बिल्कुल उल्टा घुमा दोगे, अपोजिट कर दोगे रोटेशन उसका, तो सेम पोजीशन हो जाएगी। ऐसे ही सेम आई के साथ भी। I think it's a refractionary also. सॉरी, Sir reflection symmetry also. हाँ, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होती है एच में, आई में भी होती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ओके, एच में दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एच का वो भी 2 होता है। आई में भी ऑर्डर 2 है। जब आप आई को 180 डिग्री घुमाएंगे तो सेम पोजीशन हो जाएगी, एंड फिर से 360 डिग्री घुमाएंगे तो फिर से सेम पोजीशन हो जाएगी। सो द ऑर्डर इज 2। सेम इज विद द केस ऑफ एन। एन के केस में भी यही होगा, एस के केस में भी यही होगा, जीरो के केस में भी यही होगा, ओ लेटर ओ के केस में भी यही होगा, एक्स के केस में भी सेम यही होगा, How in 0, sir? जेड के केस में भी यही होगा। ठीक है, Sir, 0 is equal from upper and down, sir. So how in 0, sir? सॉरी बेटा, You have said, sir, in 0, sir. So जीरो बेटा, जीरो ओवल zero शेप का होता है। जीरो ऐसा होता है ओवल शेप का, जो आपने अभी देखा था। yes, sir. ओवल ओवल शेप होती है जीरो की, Yes, sir, तो got ऑर्डर it, क्या sir. होता है? 2 ऑर्डर होगा उसका। ओ के केस में भी यही होगा। ओ भी जो है वो परफेक्ट सर्कल नहीं होता है, ओ भी। ठीक है, तो उसमें भी उसके ओ के केस में भी ये ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 18B। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू टेल हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल to do in book, not book. Sir, 3. Sir, 1. in the book only, you have to do in the book। इक्विलेटरल ट्रायंगल में लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं? 3. Sir, 3. लाइंस ऑफ सिमेट्री तो हम सबको मालूम है 3 होती हैं। ठीक है, आई एम ड्राइंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हियर। सभी लोग जानते हैं द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कितनी होती हैं? 3। ठीक है, एक तो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट वर्टेक्स से जाएगी। देखिए, वर्टेक्स ए से ऐसे करके बनेगी। लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से उठाया है ये टॉपिक मैंने? ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री में होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री में नहीं होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री का क्वेश्चन है ये वाला। तो देयर आर 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड ऑर्डर क्या होता है? रोटेशन का ऑर्डर क्या होता है? अगर मैं इसी फिगर को मैं अगर रोटेट करा दूंगा, 120 degree. इसमें रोटेशन का ऑप्शन होता है नहीं होता है? बड़ा छोटा करने का ऑप्शन तो है, रोटेशन का ऑप्शन नहीं है। Yes, sir. Sir, होता है। सर Sir, होता है। होता है, sir. Sir, ऊपर एक के सर पास पकड़ के देखिए, घुमा sir. दीजिए फिगर को। सर बीच में सर। Sir, from middle. नहीं है बेटा। सर अपने माउस को सर्कल कीजिए तभी हो जाएगा। फिगर मूव हो रही है एंड बड़ी छोटी हो रही है। देयर इज नो ऑप्शन सर ऑफ ऐसे रोटेशन। नहीं होगा, सर। सर वो अलग प्रोग्राम्स में होता है, सर, क्योंकि सर उसमें एक एरो आती है, सर, डाउन। चलो खैर, जो भी है, लीव इट। बट द ऑर्डर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री हमने अभी अभी सीखा था, वीडियो में भी देखा था। द ऑर्डर इज 3। ओके, तो वो आप सेकंड पार्ट का आंसर लिख लो। लाइन ऑफ सिमेट्री भी उसमें 3 होती हैं, एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी कितना होता है? 3 होता है। तो राइट डाउन द आंसर 3। So what different question 2 पढ़ रहा हूँ मैं बेटा। ठीक है, I hope you all are paying attention. Through what different angles should a rectangle be rotated to be symmetrical position with the original position? Rectangle के केस में क्या होगा? कितने एंगल पर जाकर Sir, के 180 degree.
सर 180 एंड जो 360. ऑर्डर Two. है वो देखिए मैं बनाता हूँ फिगर रेक्टेंगल। माउस कहाँ गया, ये रहा। आई एम ड्राइंग अ रेक्टेंगल। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल मैंने यस बनाया। सर 180 एंड 360. तो रेक्टेंगल को अगर मैं पहले मान लीजिए मैं 90 डिग्री रोटेट कराता हूँ, अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो रेक्टेंगल की पोजीशन ये हो जाएगी। ये 90 डिग्री रोटेशन के बाद हुई है। कितना रोटेशन कराया मैंने? 90 डिग्रीज का। अगर मैं फिर से 90 और करा देता हूँ, यानी कि टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा? 180 का। तब जा करके दोबारा से यही शेप आ जाएगी। ये मैंने कब किया? जब मैंने 180 डिग्री का टोटल रोटेशन 180 डिग्री का करा दिया, तब जा करके फिर से वही शेप आ जाएगी। ये वाली शेप और ये वाली शेप सेम हो गए। ठीक है, तो 180 के बाद होगा फिर से 180 और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 360। दैट मीन्स 180 डिग्रीज एंड 360 डिग्री। सो ऑर्डर कितना हुआ रेक्टेंगल का, जरा बताना मुझे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री? 2. Sir, 2। 2. 2 is the Sir, order. two. Very good, very good. 2 is the order. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर? बताइए भाई, क्या ऑर्डर होता है? Sir, Sir, 4. 4. 4। स्क्वायर का ऑर्डर 4 होता है। कौन कितने कितने एंगल पर होता है बताओ जरा। Sir, 90, Sir, 90, 180, 80, 270, 70, 360. Yes or sir 90. 280. 90 290. डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 180, 270. 270 डिग्रीज, 90, 180, 270 एंड 360। ठीक है। क्वेश्चन 4, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ रोम्बस हैव? रोम्बस में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री 2. होती हैं? 2. 2. देखो मैं दिखाता हूँ बेटा, रोम्बस में कितनी होती हैं। रोम्बस की ऐसी की तैसी। ये देखो बेटा, ये रहा रोम्बस। ठीक है, सर रोमस के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. अब देखना जब मैं इसको रोटेट करा दूंगा 180 डिग्री, तो ये ऐसा बन जाएगा। सॉरी, 90 डिग्री रोटेशन कराया, फिर 180 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो क्या होगा? तब Sir, फिर I से think the शेप। rhombus is favorite. क्यों बेटा? सर ये स्क्वायर बना दी. व्हाई डू यू थिंक सो? जब 180 डिग्री रोटेशन होगा तब दोबारा से शेप यही आ जाएगी। ठीक है, 180 डिग्री के बाद आएगी ऐसी शेप। तो दैट मींस एक तो 180 डिग्री पर आएगा और दूसरा 360 पर आएगा। सो ऑर्डर कितना हो गया बेटा रोम्बस का? 2. 2 इज द ऑर्डर। ठीक है, Sir means how many lines? So sir order is also there sir. पैरेललोग्राम का बताना बेटा मुझे, कितना होगा? Sir, 4. 4. 0 होगा। पैरेललोग्राम में कोई भी रोटेशन सिमेट्री नहीं दिखेगी आपको। देयर विल बी नो रोटेशन, मतलब 360 के बाद ही होगा, उसमें बीच में कुछ भी नहीं आएगा। 360 के बाद तो सारी फिगर में रोटेशनल सिमेट्री दिखेगी। सो दैट मींस इन केस ऑफ पैरेललोग्राम द ऑर्डर विल बी 1, इट विल नॉट शो एनी रोटेशनल सिमेट्री बिफोर 360 डिग्रीज। ओके, पैरेललोग्राम के केस में यहाँ पर दिया नहीं था, मैंने ऐसे ही पूछ लिया आप लोगों से। सो रोम्बस का आंसर क्या होगा बताओ भाई? Sir, 2. लाइंस ऑफ 2. सिमेट्री रोम्बस में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। डायगोनल के अलोंग होती हैं, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 2 होती है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होता है? वो भी 2 होता है। ठीक है, Yes sir. Sir I think sir lines and sir the rotational symmetry are same sir because ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ शेप्स में ऐसा हो सकता है दैट वहां पर लाइंस ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं और रोटेशनल सिमेट्री हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है,
जैसे कि वो वाली शेप जो अभी इन्होंने दिखाई थी स्क्रीन पर, ऐसा कुछ शेप था। लेट मी ड्रॉ इट हियर। मान लो ये शेप है आपका। From tomorrow we will start the revision. No, sir. It was not like this. अरे ये भी No, ठीक है। sir. Yes, sir. It was Sir, like this only. Sir, the edges was in the middle. कोई बात नहीं, ये भी एक एग्जांपल है। दिस इज अनदर एग्जांपल। मैंने आपको एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दिया। दिस फिगर हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है ही नहीं, बट रोटेशनल सिमेट्री है इसमें। Sir, when our school will start offline? बेटा आई डोंट नो, मे बी फ्रॉम 1st of September or later, but I don't have any information about it. Sir, how many concerns are there now? I don't have information. Thank you, Okay. sir. So this figure has no reflection symmetry, but it has rotational symmetry. इसमें rotational symmetry का order 2 है। 180 डिग्री के बाद सेम शेप हो जाएगी, फिर 360 डिग्री के बाद हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट स्काई शर्मा? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। राइट 3 letters of English alphabet which have 2 lines of symmetry and rotational symmetry of order 2. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। लेटर एच है, लेटर आई है, Yes, sir. एच है, आई है, एक्स है। ऑल दीज लेटर्स हैव 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड इनका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, वो भी 2 होता है। ठीक है, एच आई एंड एक्स। डन। Yes. क्वेश्चन 6 देखिए। आई होप यू ऑल आर राइटिंग द आंसर्स इन द बुक। आंसर लिख रहे हो ना? Sir. Yes. Sir, Sir. Excuse me, sir. Sir, which question we have to do? Excuse me, sir. Yes बेटा, बताओ बताओ। Sir, from day after tomorrow we'll start the revision. From day after tomorrow we will not Sir, which start question revision. We will do new chapter from tomorrow. Okay, चलिए So which- आगे बढ़ते हैं। अरे बता देंगे बेटा, बता देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Give an example of a figure that has a line of symmetry but does not have rotational symmetry. Line of symmetry तो होती है but rotational symmetry नहीं होती है, बताइए। Sir, hint में दिया गया है an isosceles triangle. Can we say the letter Y? Sir, Y एग्जाम्पल scalene. दे सकते हैं। Yes, sir. बहुत सारे Why? एग्जाम्पल हैं। Y है, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी Y। Sir, scalene triangle. लेटर T है इसका एग्जाम्पल, देयर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन लेटर T। Y हो गया, T हो गया बेटा, Sir, letter अल्फाबेट। B. ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। इवन आइसोसेलेस ट्रायंगल भी इसका एक एग्जाम्पल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल
नॉट स्केलिन ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, बट रोटेशनल सिमेट्री आइसोसेलेस ट्राइंगल में नहीं होगी। ठीक है। Okay, sir. Sir, यस। sir, which is the trapezium shape, sir? ट्रेपेजियम शेप ये होती है बेटा जिसमें अपोजिट साइड्स के दो पेयर पैरेलल होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, इसमें ये वाली Okay, साइड sir. इसके पैरेलल है। ठीक है, एक पेयर ऐसा होता है अपोजिट साइड्स का जो पैरेलल होता है, दैट इज नोन एज अ ट्रेपेजियम। फोर साइड्स होती हैं। ट्रेपेजियम इज अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Does every trapezium have a line of symmetry? सारे ट्रेपेजियम में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? The answer is no. False. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, नॉट एवरी ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं। कौन सी? एक पेयर तो साइड्स का ऐसा होता है जो पैरेलल होता है, ये वाला ये इसके पैरेलल है, एंड ये वाली साइड अगर इक्वल है तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, इसमें एक साइड ये मैंने छोटी बना दी, एक ये वाली बहुत बड़ी बना दी, देखो बड़ी बन गई। तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेपेजियम बट दिस इज नॉट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, यहाँ पर होगी। कौन सी होगी? ये वाली। क्लियर? Okay. तो आंसर इसका क्या होगा? नो। डज एवरी ट्रेपेजियम हैज लाइन ऑफ सिमेट्री? द आंसर इज नो। Bye, sir. Okay, we will continue tomorrow. Thank you. Tomorrow you say we'll start new chapter.